Good morning, students. Now we are on lecture 5. In the last lecture, we had discussed about Werner's theory, valence theory for bonding and coordination compound, as well as valence bond theory for bonding and coordination compound. In this portion, we'll discuss about valence bonding and coordination compound by crystal field stabilization theory, CFT, crystal field theory. It is one of the most advanced theory for explanation of bonding in coordination compound. It is right, very interesting also. It is right. And in this part we'll discuss, we can see why pairing occurs in VBT and why VBT explain pairing, how it is occur, in what condition it is occur, in what condition it is doesn't, right? Let me see. So the crystal field splitting is crystal field theory. First we are going to discuss about it. It is based on electrostatic model. Ligands are considered as unit positive charge, is considered as unit charge, we can see point charge, we can see. If it is anionic ligand, and if it is cationic ligand, it is neutral ligand, it is considered as point dipole. So either it is considered as anion or dipole, right? 5d orbitals in an isolated gaseous metal atom or ion have same energy, that we know very well, right? They have same energy, that's why they are called degenerate orbitals. Orbitals having same energy are known as degenerate orbitals, right? But when ligand approach toward central metal ion or central metal atom, the degeneracy of these d orbitals destroy and they become generate. Due to this loss of degeneracy, splitting of d orbitals occur. The splitting nature of splitting is based on the field produced by the ligands, or number of ligands are there, that symmetry generated by the ligands actually. On that basis it is depend. So it is very clear we need to discuss this theory individually for each and every shape. Here we are going to discuss about octahedral geometry, tetrahedral geometry and square planar, right? Let me discuss one by one. The first one is octahedral geometry. So crystal field splitting in octahedral coordinate entities, matlab octahedral entities is there, and what split and how splitting may occur in these crystals, why d orbitals lost their degeneracy. Here we are going to discuss about it. You can see here what happened in octahedral field, you know very well. What happened in octahedral field? This is central metal ion and it's a d orbitals. हम जानते हैं d orbitals में क्या होता है, axial d orbitals होते हैं, 3 orbitals, 2 orbitals are axial d orbitals, dx square minus dz square, and 3 other orbitals are non-axial d orbitals, like this, dxy, dyz and dzx ऐसे होते हैं. dx square minus y square ऐसा होता है, and one more that is remaining is dz square, यहाँ एक रिंग होती है, and dz square ऐसा होता है. So these two, x square minus z square and z square, is considered as axial and they are considered as non-axial. What will happen in case of octahedral field? यहाँ central metal ion है, octahedral जब ज्योमेट्री बनेगी तो क्या होगा? octahedral ज्योमेट्री इस तरीके से बनेगी,
if it is considered as O, origin point, in that case, that if we consider it X, so that will be Y and that will be Z, right? So it is very clear, for bonding ligand will come on axis, through axis toward central metal ion, obviously. So what will happen, that repulsion, axial orbitals feel more repulsion as compared to non axial orbitals. जो axial orbitals होते हैं वो ज़्यादा repulsion फील करेंगे as compared to non axial orbitals. Axial orbitals non axial orbital से ज़्यादा repulsion फील करेंगे, राइट? और इस कारण से क्या होगा, जिनमें repulsion ज़्यादा होगा उनकी वो ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएंगे, और जो ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएंगे उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, और जो कम अनस्टेबल हो जाएंगे उनकी एनर्जी कम हो जाएगी. Is it clear? So axial orbitals feel more repulsion as compared to non-axial orbitals. Hence, energy of axial orbitals increase and energy of axial or non-axial orbitals decrease. You can see here in this part. So what will happen? These are general degenerate d orbitals. As ligands approach toward d orbitals, slight energy of all the d orbitals increase. Active phase में जब भी होते हैं obviously increase होगी energy, and afterwards what will happen? Energy of axial orbitals increase. They are known as EG orbitals, and energy of non-axial orbitals decrease. They are known as T2G orbitals. EG and T2G are their symmetric terms. Symmetry के terms होते हैं इनके लिए, right? So इस तरीके से हमने देखा splitting हो गई, EG orbitals की एनर्जी ज़्यादा हो गई, T2 जो 3 orbitals हैं जो इनकी एनर्जी कम हो जाती है. Now the point is, during filling of electrons, obviously we know very well what will happen during filling of electron. All the rules for filling electrons in orbitals or in subshells must be followed. So obviously lower energy orbital filled first, higher energy orbitals filled later. One orbital consists only 2 electrons, and first all 1 electrons filled in degenerate orbitals, and then pairing occur. So all the rules given for filling of electrons must be followed here, right? So how electrons filled in it? So उसके लिए एक फॉर्मूला बन जाता है. पहले ऑब्वियसली किस में भरे जाएंगे, जिनकी एनर्जी कम है उनमें भरे जाएंगे, और उनकी एनर्जी कितनी है, 2π5 डेल नॉट. डेल नॉट, लेट मी एक्सप्लेन इट ऑल्सो. डेल नॉट इज the splitting energy, the difference in higher or lower energy states. It is known as crystal field splitting energy and denoted by, if it is del naught, it means crystal field splitting energy is in octahedral field. For tetrahedral we would write del T. For square planar we would write del SP, right? So 2.5 del naught कम हो जाएगा और 3.5 del naught बढ़ जाएगा. So it is for each electron has same that energy conditions. So overall total crystal field splitting, so how can we determine, how can we fill electron in it? So total crystal field splitting energy के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं -0.4 T2G plus 0.6 EG. One more important thing I need to explain here, that as much as strong effective ligand is, as much as crystal field splitting energy. जितना ज़्यादा ligand strong है उतनी ही ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी.
It means, you can see, it means as much as strong is the ligand, as much as crystal field splitting energy. Strong field जितना ज़्यादा. Now there's no required demarcation. We can say the demarcation यहाँ से डिसाइड होता है कि क्यों H2O तक ऐसा होता है, क्योंकि H2O के बाद ऐसा देखने लगते हैं कि उतनी स्प्लिटिंग नहीं होती. तो फर्स्ट वन इज जितना ज़्यादा दैट स्ट्रेंथ होगी लेगेंड की उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी. नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट व्हाट विल हैपन, हाउ कैन, in what condition the pairing occur. So what will happen actually in case of there's two condition for to define pairing. Let the pairing energy, what is actually pairing energy? As we know, electrons are electronegative in nature, but still they are though they are electronegative in nature, but remain in an orbital, in a pair. So for pairing of electrons, some amount of energy required to manage the electrons against their interelectronic repulsion in an orbital is called pairing energy, right? And the other one is crystal field energy. So if pairing energy is more than crystal field energy, यानी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी जो है उससे ज्यादा पेयरिंग एनर्जी है, इट मींस पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है एंड क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कम है, राइट? तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में पेयरिंग नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? वेरी क्लियर, क्रिस्टल फील्ड कम है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा, एनर्जी में इतना डिफरेंस नहीं है कि हम इसे ऑफ बाउ के रूल के अकॉर्डिंग ले सके. और पेयरिंग के लिए जो आपको एनर्जी देनी है वो ज्यादा लग रही है, और जितनी एनर्जी क्रिस्टल फील्ड से आपको मिल रही है वो कम है. तो ऑब्वियसली हमारे पास जो है वो कम है और जो देना है वो ज्यादा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हम नहीं दे पाएंगे, राइट? सो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? यहां चला जाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग यहां, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ना होकर यहां पर हो जाएगी. जनरली जो कंडीशन है D1 D2 D3, देखिए जब फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा D1 D2 D3 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहला या देखिए D1 में कोई इश्यू नहीं है, T2G में ही जाएगा लोअर एनर्जी, D2 में भी T2G में जाएगा, D3 में भी T2G में जाएगा, राइट? लेकिन उसके बाद जब D4 की बात आएगी तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये इस बात पे डिपेंड करता है, राइट? ये इस बात पे डिपेंड करता है. ये टेबल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, विल डिस्कस, मैं इसे हटा देता हूं थोड़ा सा पहले देर के लिए. सो इट डिपेंड्स ऑन इट कि फील्ड कैसा है, डिपेंड ऑन इट की फील्ड कैसा है, right? So the first thing, if pairing energy is more than crystal field splitting energy, in that condition no pairing occur. It means in this situation generally occur in case of weak field ligand or high spin complexes. But if crystal field splitting energy more, it means more splitting occur. Obviously ज़्यादा splitting कब होगी? जब repulsion ज़्यादा होगा, और ज़्यादा रिपल्सन कब होगा? जब फील्ड ज़्यादा होगा. सो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, और ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने की बजाय नीचे ही T2G में रहना चाहेगा और पेयरिंग करना चाहेगा. सो इट इज़ वेरी क्लियर. द पॉइंट इज कि पेयरिंग एनर्जी अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करेगा. इट हैपन्स इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड. बट अगर पेयरिंग एनर्जी कम है, क्रिस्टल फील्ड ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर न जाके वहीं पर पेयरिंग कर लेगा, राइट? और उसी के बेस पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो जाएगी. मैं यहाँ पर इसके लिए टेबल आपसे खुद शेयर करता हूँ, जो टेबल मैंने अभी आपको हटाई है क्योंकि उसमें मुझे लग रहा था कि शायद कुछ गड़बड़ है. नाउ मैं खुद पेंट में आपके लिए ये टेबल बनाता हूँ, ठीक है? सो वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की जब हम बात करते हैं तो उस केस में क्या होगा, लेट वी डिस्कस अबाउट.
right? Let me save it first. VVT, right? And VVT CFSE1, ठीक है. ओके, नाउ इसको मैं हटा देता हूँ. लेट्स सी. तो टेबल में क्या होगा, अब यू कैन सी, मैं यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ. सो द स्ट्रक्चर विल बी splitting occur, right? And if splitting occur, in that case what will happen is splitting occur, in that case what will happen, so if a splitting occur, in what case what will happen, let's see. So in case of splitting, it the d orbitals, 5 d orbitals divided into 2. Above one is Eg orbitals जिसमें 2 orbitals होते हैं, and the downward will be T2g orbitals जिनमें 3 orbitals होते हैं. Now in case of weak field ligand, let me discuss about in case of weak field ligand. D1 configuration, the formula of energy I mentioned earlier, minus 0.4 T2g plus 0.6 Eg, number of electrons also there, n into Eg or T2g for electrons, and it will be equal to CFSE, right? So 0.4 T2g plus 0.6 Eg. Now for D1 तो क्या हो जाएगा, T2g1, एक इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा. D2 T2g2, D3 T2g3. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में भरे जाएंगे, यहाँ कोई समस्या नहीं है. बट नाउ फॉर T2g4, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहां पर गया, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया. नाउ फॉर फोर्थ इलेक्ट्रॉन, if it is weak field ligand, in that case pairing energy is more than crystal field splitting energy. तो जो एनर्जी हमें देनी है, और क्रिस्टल फील्ड एनर्जी तो बाहर निकलती है, तो जो बाहर निकल रही है उससे ज़्यादा हमें देनी पड़ रही है, तो ऑब्वियसली हमें नहीं कर पाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ चला जाएगा. सो D4 कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, इन केस ऑफ D4 कॉन्फ़िगरेशन दैट विल बी T2g3 Eg1, एंड एनर्जी कितनी हो जाएगी, इस केस में हो जाएगा -0.4, इस केस में हो जाएगा -0.8. T2g में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये n T2g में अपन यहाँ कह सकते हैं n T2g n Eg, राइट? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ -1.2 हो जाएगा. डेल नॉट डेल नॉट डेल नॉट. नाउ इन दिस केस अब क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, सो इट विल बी -0.6 डेल नॉट, बिकॉज -1.2 and plus 0.6, so that will be -0.6. and then D5 configuration, तो जनरल कंडीशन हम लेते हैं VBT में, मतलब सारे हमने कंडीशन लिए वही वाली कंडीशन Eg2, and then so it will be 0.00. is it okay? इसके आगे भी इसी तरीके से 0.4 से शुरू होगा और फिर लास्ट में D10 पर वो फिनिश हो जाएगा, फिर से यही हो जाएगा. नाउ इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा भाई, तो सबसे पहले D1 D2 D3, सेम सिचुएशन जैसे D1 D2 D3 की होगी. लेकिन जब D4 कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है और पेयरिंग एनर्जी कम होती है. यानी हमारे पास जो है और जो हमें देनी है, जो हमारे पास ज़्यादा है और हमें देनी कम है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी. तो इस कंडीशन में D4 के लिए इसका क्या बन जाएगा, D4 के लिए क्या हो जाएगा, दैट विल बी T2g4, एंड द एनर्जी विल बी 1.6 डेल नॉट. फिर D5 के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2g5, एंड द एनर्जी विल बी -2 डेल नॉट. D6 के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2g6, एंड एनर्जी विल बी -2.4 डेल नॉट.
D7 के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, D7 के लिए कॉन्फ़िगरेशन, अब ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पूरे इलेक्ट्रॉन भर गए हैं तो Eg में ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, Eg1, तो इसमें से कम हो जाएगा तो -1.8 डेल नॉट। एंड देन D8 के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, तो T2G7 और T2G6 और Eg2, सो दैट विल बी -1.2 डेल नॉट। आप देखेंगे D1, D2, D3 और उसके बाद D8, D9, D10 में एक ही बराबर एनर्जी होती है, चाहे वीक फील्ड हो या चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो। इसीलिए मैंने वहाँ भी कहा था कि इन केस में पेयरिंग नहीं होती, या इन केस में पेयरिंग करें भी अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड्स में तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, और फ़ायदा नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, बेनिफिट नहीं है तो नहीं होगी। तो वहाँ हमें ये नहीं समझ में आता था कि पेयरिंग क्यों नहीं हो रही, बट यहाँ आप ये समझ सकते हैं। D9 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2G6 Eg3, राइट, ये 1.2 होगा, राइट, ये क्या होगा लास्ट में जो हमने अभी किया है, दैट विल बी, क्योंकि 0.6 कम हो जाएगा, दैट विल बी 1.2, फिर हो जाएगा 0.6 D9 में -0.6 डेल नॉट, और D10 में हो जाएगा 0.00 डेल नॉट। ये टोटल ओवरऑल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हमें देखने को मिलेगी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। आई थिंक नाउ यू कैन बेटर अंडरस्टैंड इट। नाउ नेक्स्ट वन इज, so the next so ये this is all about that we had discussed about that distribution of electrons, right, in various configuration that we can see, and total formula for CFSE, total CFSE कितना होगा वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें कोई वैल्यू दी हुई है तो उसी के बेस पर हमें फाइंड करना होगा। अगर हमें CFSE फाइंड किया हुआ है, हमें गिवन है, इस फॉर्मूले से हमें उसे फाइंड करना होगा। दैट वैल्यू विल बी, जितना भी हमारा आता है 1.2 डेल्टा नॉट, तो डेल्टा नॉट अगर गिवन है तो 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा एक्चुअल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगा उस आयन के लिए, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने डिस्कस किया। नाउ इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेट एंटिटीज, अब अगर हम टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेट एंटिटीज के बारे में बात करें तो क्या होगा भाई, तो टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेट एंटिटीज में एज वी नो क्या होता है टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेट, पहले मैं इसे सेव कर दूं एक बार, शायद आपको जरूरत पड़े, तो VVT CFSE2, राइट, सो दिस इज VVT CFSE2, राइट। नाउ अब हम सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। अब सेकेंड पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, टेट्राहेड्रल में वी नो द अरेंजमेंट ऑफ टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन का अरेंजमेंट कैसा होता है भाई, तो ये M and one is L here, another L is here, another L is here, and another L is here. It is also inclined, right, like this, inclined it is. So it is very clear, no ligand for tetrahedral bonding come through axis. So it is very clear in this case ligand travel through that non-axial d orbital feel more repulsion as compared to axial d orbitals. non-axial d orbital ज़्यादा repulsion feel करते हैं इस as compared to axial d orbitals. It is very clear that obviously जो नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और जो एक्सियल डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। सो जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हमने डिस्कस किया था उसका ऑपोजिट हो जाएगा इन केस ऑफ टेट्राहेड्रॉन। Eg और T2G नहीं लिखते, T2 और E लिखते हैं, कुछ स्टोइसोमेट्रिक इशू होते हैं उस पर हम नहीं जाएंगे, बट इसमें हम T2 और E लिखते हैं, T2G और Eg यहाँ पर नहीं लिखते हैं। फॉर्मूला वैसे ही उल्टा हो जाएगा, इस बार एनर्जी क्या हो गई, -0.6 E जो है वो 0.6 कम हो जाती है और वहाँ पर 0.4 बढ़ जाती है। E और T2 जो मैंने लिखे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हैं, आप वहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N मेंशन भी कर सकते हैं, राइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, वहाँ पर उस फॉर्मूले में भी वैसे आपके लिए और एक्सप्रेसिव बना देता हूँ। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली वहाँ मेंशन करने के लिए मैंने ये चीज़ मेंशन की हुई थी कि आप वहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेंशन कर सकें। कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड Eg में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं।
इसको मेंशन करने के लिए वहाँ पर मैंने ये रखा हुआ था। तो यहाँ पर भी मैं वही कर देता हूँ, n and n, right? So number of electron TTG orbitals और number of electron in EG orbitals, right? Okay, so this is, now you can see this is crystal field splitting. And one more relation between delta T is equal to 4/9 delta naught. So obviously delta T is equal to 4/9 delta naught. So it is very clear that delta naught delta crystal field splitting energy in case of octahedral field is more than crystal field splitting energy in case of tetrahedral field, राइट? स्प्लिटिंग उतना ज़्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिलता इस केस में, लेकिन लेगेंड्स रिपल्सन की बात जो मैंने आपसे कही वैसा ही है। नाउ इन स्क्वायर प्लेनर, यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। स्क्वायर प्लेनर फील्ड की बात करें तो स्क्वायर प्लेनर के जब हम बात करते हैं तो स्क्वायर प्लेनर के केस में क्या होता है, तो स्क्वायर प्लेनर के केस में हमें क्या देखने को मिलता है भाई, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन मिलती है, और उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हमें बहुत ज़्यादा जाना नहीं है, और लेकिन ये बात ज़रूर है कि आपको ये ज़रूर थोड़ा सा समझना है कि क्या होता है। या इससे रिलेटेड एक पॉइंट जो कि बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन मैं आपसे शेयर करूंगा, तो वो आपको काफ़ी यूज़फुल होगा आगे के कुछ एक्सप्लेनेशंस के लिए, इसीलिए मैंने इसको आपके लिए रखा है। अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है स्क्वायर प्लेनर, और ना ही आपके सिलेबस में, राइट? तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होता है, आप देख सकते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के केसेस को इस केस में देख सकते हैं। रीज़न कई हैं, बट एक चीज़ बहुत क्लियर है कि अगर हम बात करते हैं जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स वी नो वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्वायर ज्योमेट्री, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्वायर ज्योमेट्री, एंड इफ इट इज स्क्वायर ज्योमेट्री, इन केस ऑफ इट इज ऑब्वियसली प्लेनर, और प्लेनर तो एक्सियल वाले जो हैं वो ज़्यादा रिपल्सन फील करेंगे, और एक्सियल वाले कौन से, एक्सियल वाले कौन से, जो उस प्लेन में होंगे, राइट? तो एक तो जो नॉन एक्सियल, अगर आप देखें एक्सियल वाले ज़्यादा रिपल्सन फील करेंगे, और साथ में उनके जो प्लेन में है वो वाले ज़्यादा फील करेंगे, यानी डी जेड स्क्वायर उतना रिपल्सन फील नहीं करेगा। तो एक तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन फील कौन करेगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और उसके बाद रिपल्सन फील करेगा डी एक्स वाई, क्योंकि बाकी तो जो है चाहे वो वाई जेड हो या जेड एक्स हो, डेफिनेटली जेड में है, और डी जेड स्क्वायर तो जेड में है ही, तो ऑब्वियसली इनमें जो रिपल्सन होता है वो ज़्यादा फील जो है वो करते हैं, और इसीलिए आप देख सकते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, डी जेड स्क्वायर की थोड़ी कम हो जाती है, और डी एक्स वाई इनके रिलेशन में इसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, राइट? तो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। बट मेरा जो पॉइंट है वो मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये कि जो स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, और फिर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और उसके बाद टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। दिस इज माय पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को आपको जरूर ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि भाई ऐसा क्यों होता है, राइट? तो या कौन कौन से फैक्टर होते हैं, तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है दैट इज फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द लिगेंड, ऑब्वियसली, लेकिन रिमेंबर दिस फैक्टर इज एप्लीकेबल फॉर 3D सीरीज ओनली। 4D और 5D पर जो फैक्टर आता है दैट फैक्टर वुड बी ओनली वन, दैट फैक्टर वुड बी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये फैक्टर केवल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो सकता। तो ये फैक्टर कौन सा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मैं यहाँ पर उसे मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ नेक्स्ट वन में, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
तो जैसे ही हम डी ग्रुप में हम जानते हैं कि डाउन दी ग्रुप जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता जाता है। और क्यों बढ़ते जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, पुअर शील्डिंग ऑफ डी सबशेल, etc etc, right? So this field strength only affect CFSE for 3D series, और वहीं हम इसके बारे में थोड़ी बहुत वेरिएशन की बात करते हैं। अदरवाइज बाकी सीरीज में यानी 4D सीरीज और 5D सीरीज और 6D सीरीज में इसकी स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, स्प्लिटिंग हमेशा काफ़ी अच्छी होती है। चार्ज ऑन द मेटल आयन, जितना ज़्यादा मेटल आयन के ऊपर चार्ज होगा CFSE उतना ज़्यादा होगा। K3FeCN6 या K4FeCN6 में से K3FeCN6 ज़्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज K3FeCN6 में आयरन के ऊपर 3+ होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, वेन एवर यू आर कंपेयरिंग टू द स्टेबिलिटी ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्सेस, आपको किसी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेस पे कंपेयर करना चाहिए, मिक्स नहीं करेंगे। लाइक अगर मुझे कंपेयर करना है ऑन द बेसिस ऑफ मेटल आयन, तो मुझे लिगेंड सेम होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होना चाहिए, राइट? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एज आई ऑलरेडी मेंशन, डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है और इसीलिए वहां पर हमेशा स्प्लिटिंग अच्छी होती है और पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कंसीडर की जाती है, यानी जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के हिसाब से ही किए जाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, एज आई मेंशन, कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से देखें, स्क्वायर प्लेनर, बिकॉज स्क्वायर प्लेनर हैज मोर that crystal field splitting energy as compared to octahedral, and octahedral has more greater crystal field splitting energy as compared to tetrahedral, right? तो वही रहेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, उसके लिए सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स सेम होने चाहिए, तब कोऑर्डिनेशन नंबर को हम कंपेयर कर सकते हैं, राइट? The next one is atom sharing electron pair in ligand or type of ligand. This is very 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 important, right? So generally it is according to the type of ligand, we can say the strength के basis पर भी हम कह सकते हैं, the ligands those having carbon atom as donor atom, carbon atom donor atom की तरफ होता है, they are strong field ligand generally, and in these cases, in presence of these ligand, CFSE is relatively higher. Then after carbon, nitrogen, then oxygen, and then halogens. This generally would be criteria for ligand strength also. And the next one is chelating ligand. As I already mentioned, what is chelation? Is to cover central metal ion more than one place. The tendency of that or nature of that nature of ligand is called chelating ligand. Chelation it is called. And as I already told you that chelation enhance stability, so it is also enhance CFSE. एक बात ध्यान रखिएगा, CFSE ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, chelation stability को increase करेगा, but here I am going to again mention this thing that no chelation effect operate when the electron donor atom is carbon. अगर कार्बन वाला है और बाकी केसेस में पॉलीडेंटेड या बाइडेंटेड या ट्राइडेंटेड लिगेंड है, बट एक कॉम्प्लेक्स ऐसा जिसमें कार्बन डोनेटिंग लिगेंड, कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है इन एज अ लिगेंड, right? So in case, so that case that carbon donor ligand containing complex will be most stable. In other cases, oxygen donor, nitrogen donor, halogen donor, chelation operate. Remember it, very very important. These are the factors which affect CFSE, so stability also. Thank you for today. We'll discuss last part of this chapter in next lecture.